the angle of depression of top and bottom of 7-meter tall building from the top of tower are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखिए, बिल्डिंग आप इधर बनाओ या टावर इधर बनाओ या टावर इधर, बिल्डिंग कोई फर्क नहीं पड़ता. Our main motto is to make the exact or the correct figure. हमको बिल्कुल करेक्ट फिगर बनानी है. तो ना दो दिस, ये आपका BUILDING, ये एक बिल्डिंग है देखिए, एंड one tower is here. This building is 7-meter high. They both are at a distance of x meter, which we have to also find out, because without base height is not possible. याद रखिएगा. तो now एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमेशा, फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये डॉटेड लाइन आपकी हमेशा दिखाई जाती है, याद रखिएगा, इमेजिनरी. तो देखिए, जब दिस इज द टॉप ऑफ बिल्डिंग, दिस इज द फुट ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज द टॉप ऑफ टावर एंड दिस इज द फुट ऑफ, इसको टी आर कर ही देते हैं टावर को यहाँ पे नाम, और बिल्डिंग में बी जी कर देते हैं. तो ना स्मॉलर एंगल विल बी, इसके साथ आपका देखो ना, ये आपका 45 डिग्री. लाइन ऑफ साइट आपका देखो ना, बिकॉज दे आर लुकिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, चाहे बॉटम का मतलब नीचे की तरफ, चाहे वो इसका टॉप क्यों नहीं हो, लेकिन देख रहा नीचे. their eyes are inclined upon towards to the top of the 7-meter tall building. इसमें भी लाइन साइट आपका होगा. ये देखो, दिस कंप्लीट इज योर 60 डिग्री. इनका ए नाम दे देता हूं आपका, देखो नाम दिस. So what you have to do here, now from this B point you have to drop the perpendicular on this one. If this is x, it must be x, mandatory here. If this is 7, it must be 7, because the perpendicular is drawn this TR to it. And this one, इसको आपका h dash ले लीजिएगा, ये इतनी निकल जाएगी. So now h is equal to h plus h dash, और हमारा काम आपका ना ये आपका फाइंड हो जाएगा. पहले बेस निकलेगा और फिर उसके बाद क्या करना. इज इट क्लियर? आप देखो, आपका ये हो गया. आप इसको भी बात को आपका, आप देखिए 60, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द एंगल ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा. इज इट क्लियर? फाइन. देखो, तो ये 60 आपका, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन. गॉट इट? क्लियर? तो ना फिगर. अब the second one is explanation. You have to write it in your own language. B. C. आपका ना दो. This is a concise concept. Short form. Actual में short form of explanation होती है. It is a double figure, so it has your 5 points. And out of 5, 3 are known and 2 are unknown, और वही unknown हमें फाइंड आउट करना होगा. So now yeah, BG is equal to height of building and h is equal to 7 meter. This is given. Clear हो गया जी? Now second, now angle ATG, पहले ATB कर दीजिएगा. एंगल ATB इज इक्वल टू आपका नाम देगा दिस का 45 डिग्री. दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. इज इट क्लियर? एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपका गिवन है. नाउ देन एंगल ATC इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन है
This is also given. Am I right? Angle of depression given है. Now आपका देखो 1 2 3 it's 4. Let GR is equal to x मीटर, ये आपको फाइंड करना है. Distance between 2 points, foot up this one building और वो आपका टावर होगा. Is it clear हो गया? Now अब आपका था immediate let TR is equal to this is height of tower and that is H is equal to H plus H dash, यानी कि H का मतलब 7 plus H dash. ये हमको एक्चुअल में we have to find out this one. क्लियर हो गया? Now D. अब evaluation. This is the most important step of this question is. तो ना सबसे पहले इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो एंगल ATB is equal to, now angle CBT is equal to 45 degree. Angle of depression is equal to angle of elevation. एक्चुअल में कुछ नहीं, अगर ज्योमेट्री में आप जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेट एंगल्स. If two parallel lines are intersected by one transversal line, हो गया, याद रखिएगा. Now, and the second one is angle ATZ is equal to now angle RZT is equal to 60 degree. Angle of depression is equal to angle of elevation. ये भी आपका हो गया alternate angles. मतलब whenever any question which is based on this angle of depression, keep in mind that it must be written. ये mandatory है. अब कोई लिखता नहीं लिखता, mandatory का मतलब कि लिखना है, इसको तो लिखना है, ये याद रखिए. अब इसके बाद आप आएगा देखो in a right angle triangle, now CBT yeah. अब ये थ्रो एंगल ऑफ एलिवेशन के आपने बना दिया. Is it clear? एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में इसको आप क्या करते हैं, इसको आगे जोड़ दीजिए आपका नाम, तब तो आपका 45 के इन फ्रंट ऑफ दिस 45 ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. या either you have to आपका ना proceed this one and this one wherever आपका it's हो, तो आपका देखिए 1060 के लिए it can also work. Got it? So now in triangle, now this is now through angle of elevation के थ्रू अब आपका ये हो गया. तो ना इसके सामने अभी होगा तो देखो ना ये 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस. तो ना 1045 इज इक्वल टू व्हाट इज परपेंडिकुलर, दिस इज CT और CT ओवर आपका ना देखो C. तो 1045 इज 1 इज इक्वल टू H डैश ओवर X. तो देखो आपका H डैश बल्कि सॉरी X इज इक्वल टू H डैश बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका नाम. Is it clear? Now, in right angle triangle, now RZT में देखो आपका नाम 10 theta is equal to आपका नाम for this complete 10 theta ये आपका वर्क करेगा नाम the perpendicular. This is RT over आपका नाम RG. Now this is 1060 degree is equal to RT is complete H over आपका नाम देखो this is the X. 1060 is this is root 3. तो रूट 3 इज इक्वल टू H. H का मतलब यू नो H प्लस H डैश. ये देखो ओवर गॉट इट. ये देखिए आपका रूट 3x इज इक्वल टू 7 प्लस H डैश. 7 of H. क्लियर? ओके. तो नाउ इस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आप रूट 3 की वैल्यू x की वैल्यू तो वैल्यू यहां रख सकते हैं आपका देखो ना दिस. ठीक है ना? x सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू H डैश इन इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. रूट 3 into x is what? That is H dash is equal to 7 plus H dash. This way. So root 3 H dash minus H dash is equal to 7. OT. H dash
कॉमन ले लीजिएगा आपका नाम. सो एंटायर बैलेंस यू हैव √3 - 1 इज व्हाट आपका देखो सर, ये आपका टेकिंग कॉमन या टेकन कॉमन, जो भी आप लिखें. तो ना h डैश इज इक्वल टू आपका देखो 7/√3 - 1. याद रखिएगा, कीप इन माइंड दैट कि नाउ ए रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. अगर आपके पास शॉर्ट होती है either दैट इज ए मोनोमियल बाइनोमियल, उसको आपका रूट में ले लिखते हैं कभी वैल्यू को, उसको आपका रेशनलाइज करते हैं. 9th में ये चैप्टर बहुत परफेक्टली मैंने पढ़ाया हुआ है, जो मेरे पास पुराने बच्चे पढ़ते थे. तो alternate conjugate, the alternate conjugate of the denominator that will be multiplied and divided by numerator and denominator जिसको कहते हैं. सिंपल वर्ड में इसको रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहते हैं. लेकिन रेशनलाइजेशन का मतलब व्हाट इज दैट, इफ यू हैव एनी, अगर एक खाली √3 भी होता तो भी आप √3 नहीं करते क्योंकि शॉर्ट है, इसको बाहर निकालना पड़ता है डिनोमिनेटर में. लेकिन यहाँ पे बाइनोमियल है तो दैट्स व्हाई इसका अल्टरनेट बाइनोमियल से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड द रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. मीन अल्टरनेट कंजुगेट ऑफ ये, इसका अल्टरनेट कंजुगेट प्लस होता है. We have no power to change the digit. Only we have a power because we are saying rationalization. So now keep in mind that. So this a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. इसमें से third product h dash is equal to 7 into 1.732 plus 1. आपका देखो over a square और minus देखो b square. Am I right? h dash is equal to 7 into देखो 2.732 over this is 3 minus 1 is equal to a स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, इससे इसको खल्लास कर देंगे 1.366. h डैश इज इक्वल टू 7 into 1.366. मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ रहा है, कितना है 9.562. This h dash. So therefore the complete vertical height of RT tower, the tower RT भी आप लिख सकते हैं. Now ये h dash h था, h plus h dash था. This is 7 plus 9.562 is equal to now 16.562 मीटर. ये आपकी इसकी कंप्लीट हाइट. अब यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगी. ये आपने जो निकाला it was up now 9.562 and when it is added to this one, अब आपका देखो ये कंप्लीट आपका आ जाएगा 16.562 मीटर. This was the height of. Is it clear? Please do it.